गेस्ट आ चुके हैं। वेलकम करती हूँ मोहम्मद तारिक तबस्सुम साहब और हमारे अगले चीफ गेस्ट सरियाज साहब तशरीफ ला चुके हैं। प्लीज़ आप सबकी भरपूर तालियों में मैं उनका वेलकम करती हूँ। तारिक तबस्सुम साहब, he is nicely personality of Sohawa and the principal of Superior Group of College Sohawa. He is full of affection, love, and nice, humble personality. He is always sincere and shows positive attitude towards his job and students. आप जो ज़हमत उठा के तशरीफ लाएंगे, फूलों की क्या मजाल हम दिल बिछाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको अपने चीफ गेस्ट का एक और तारीफ करवाती चलूँ। हमारे चीफ गेस्ट सर तारिक महमूद साहब बहुत ही ज़्यादा शायर हैं। वो गज़लें भी लिखते हैं और नज़्में भी। उन्होंने एक गज़ल लिखी जो कुछ यूँ थी, उसने फितरत के ख्वाब देखे हैं, और कितने दिलकश गुलाब देखे हैं। चांद उतरा ज़मीन पर शायद आज वो बेनकाब देखे हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी गज़लें लिखी हैं, तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में एक बार फिर इनका इस्तकबाल करती हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। We request all the guests to be seated. Put your mobile on silent mode as we are going to start the function in few minutes. तेरा है कितना ये एहसान मौला, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। कि तेरा है कितना ये एहसान मौला, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। और जुबान जिसको तूने बख्शी है हिम्मत, उसी से मैं तेरी सना कर रही हूँ। और तेरी ज़ात को जब से मैंने पहचाना, मौला तेरी कसम ऐसा किसी को न माना। तेरा शुक्र ही बस अदा कर रही हूँ, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। Ladies and gentlemen, parents, well-wishers, teachers and my dearest students, good morning and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of Gori High School, I, Isha Amjad, with my co-host Hina Razak from class 10, heartily welcome all of you for this annual day celebration. First of all, I would like to thank our principal, our staff and students for all of their hard work and preparation. Friends, Gori High School is marching towards an extra mile with a smile in the momentous task of molding minds. This place of knowledge is a name with mission to nurture each child to make a compassionate and a discerning individual through a holistic quality education. Gori High School has always endeavored to impart virtues to children, which is very important and indispensable parameter in their holistic development. Today we are celebrating the 26th year of this institution, which is a symbol of discipline, values and unstoppable achievements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence here and remember your encouragement are what will make your children cheerful. So please make sure parents you keep cheering all the children after every program. Without taking much of your time, permit us to start the program with the blessing of Allah Almighty. कोले हुदा कोले रसूल फरमान न बदला जाएगा, कि कोले हुदा कोले रसूल फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। Now the students of 9th class Khushboo, Malaika and Warda are coming for recitation of Surah Rahman. So please Khushboo, Malaika and Warda come upon the stage and recite the precious verses of Holy Quran. बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। I seek refuge in Allah from Satan the rejected one.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal Insan Allamahul Bayan Ash-Shamsu wal Qamaru bihusban wan-Najmu wash-Shajaru yasjudan was-Samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu zatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban। वो जो नहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं, बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम कर दी कि इस मीज़ान हद से तजाविज़ ना करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। उसी ने हलकत के लिए ज़मीन बिछाई, जिसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं, जिनके होशों पर ग़िलाफ़ होते हैं, और अनाज जिसके साथ बुस होता है और खुशबूदार फूल। तो ऐ ग्रोह जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? The most merciful taught the Quran, created man, and taught him clear expression. The sun and the moon move according to plan. The sun and trees prostrate, and the sky he raised, he set forth the balance. So do not transgress in the balance, but maintain the weight with justice, and do not violate in the balance. And the earth he set forth the creators. In it are fruits and plants are clustered, and grains in the blade, and for ground plant. So which of your Lord's marvels will you deny? Sadaqallahul Azim. जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ज़राए हकीर हूँ, गौहर नहीं हूँ मैं। एक ज़राए हकीर हूँ, गौहर नहीं हूँ मैं। हाके दरे रसूल से बेहतर नहीं हूँ मैं। दामन नबी का थाम कर महसूस ये हुआ, दामन नबी का थाम कर महसूस ये हुआ, दुनिया में अब किसी से कमतर नहीं हूँ मैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर छोटी बच्चियों ने दफ बजा बजा कर इस्तकबालिया गीत पेश किए। तो आज हमारे स्कूल की होनहार बच्चियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दफ के साथ अकीदत के फूल निछावर करने के लिए आती हैं। मैं दावत देती हूँ जमात नैब से फातिमा ज़हरा और अलीना नवाज को। निकाह मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, निकाह मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका
इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा। इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा। सच आखा ते रब दी में शान आखा। जी शान तू शाना सब बढ़िया। Thank you Fatma for making a peaceful environment in such a melodious voice. इब्तिदा हो कुछ इस तरह तेरे नाम से या अल्लाह, इब्तिदा हो कुछ इस तरह तेरे नाम से या अल्लाह, ये दिन गुजर जाए तेरी रहमतों के नज़ूल में। कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। ख़वातीनो हज़रात, जिस दुनिया में हम और आप रहते और बसते हैं, इसी में कभी नूह, कभी आदम, कभी मूसा, कभी ईसा, कभी यूसुफ और कभी दाऊद रहते और बसते थे। ख़वातीनो हज़रात, इस दुनिया का सर से कोई भी वजूद न था, बल्कि खुद हज़रत इंसान भी यहाँ नहीं था। ये माताब ना था, ना ये दुनिया थी, ना ये ज़मीन थी, ना ये आसमान था, कुछ भी ना था। लेकिन तब भी वो अल्लाह वाहदाहुल्ला शरीक था, और तब आज जब कुछ भी नहीं है तब भी वो अल्लाह है, और जब कल कुछ भी नहीं रहेगा तब भी अल्लाह रहेगा। वो अज़ल है, वो अबद तक रहेगा। वो यकता है, अकेला नहीं है, वही है सानी। वो यकता है, अकेला है, नहीं उसका कोई सानी। वही सबको खिलाता है, वही पिलाता है पानी। इबादत उसकी करते हैं बनी नूह इंसानी, इबादत उसकी करते हैं बनी नूह इंसानी। इसके आगे झुकते हैं सरशायो सुल्तानी। नात तू कुजामन कुजा पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ लारेब और उनके साथियों को वो प्लीज स्टेज पे आए और नात कुजामन कुजा से हमारे गुलू को आसान को मुनव्वर फरमाएं। या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि। तू कुजा मन कुजा
सगा मागा मारे सारे निसा फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी तेरा कुरान सारा नजर आएगा मेरे आका इमामे सफे अंबिया नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुज्तबा खातिमुल मुरसलीन या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा खैरुल बशर रुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामाई सारी सजबरील अमी या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू है घेरा में अनवार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए काबा के इश्क तू मैं तेरे जारज़ू तू असर में दुआ तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा ऑडियंस बच्चों को दाद देने में कंजूसी मत कीजिए। ये इन बच्चों की और इनके साथ इनके उस्ताज़ा की बहुत ही मेहनत है।
हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से? ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से? मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। ये मेरे कीमती अल्फाज थे आज की इस तकरीब में तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानों और बिलखसूस सदर तकरीब और मेहमान खसूसी के लिए। लेकिन हमारे अदारे के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खसूसी टैबलो परफॉर्मेंस तैयार की है। आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं अजान आफ्ताब और उनके साथी। सो पुट योर हैंड टुगेदर फॉर ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। Welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. Hooray, hooray, what a happy, happy day. Hooray, hooray, what a jolly, jolly day. Hooray, 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 what a happy, happy day. Hooray, 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 what a jolly, jolly day. You came with lots of love for us, with joy, pleasure and happiness. You came with lots of love for us, with joy, pleasure and happiness. You have come, you have come. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. Hooray, hooray, what a happy, happy day. Hooray, hooray, what a jolly, jolly day. Hooray, 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 what a happy, happy day. Hooray, 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 what a jolly, jolly day. What a jolly, jolly day. What a jolly, jolly day. ख़वातीनो हज़रात, अब मैं ऐसी हस्ती को स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ जो कमाले लुत्फ़ व कलाम और औजे इन पर धमकता महताब है, जो गुलस्तान अल इमरान के हर पल का निगहबान है और कड़ी धूप में अब्रे करम का आस्तान है, जिसका खूने जिगर आज की इस जीनत से टपक रहा है, जिसकी जागती रातें आज के इस रोशन दिन का सबब बनी हैं, जिसका हलूसे नियत आज की इस अजीम अल शान तकरीब का रूप धार कर आपकी आंखों के सामने है। किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी की तार की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं तुझे, कि लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। I want to invite our principal of Gori High School, Sir Suhail Riaz Raja. Please welcome on stage. नहमदहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। खूने जिगर देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने जिगर देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मोहतरम मुकर्रम ख़वातीन हज़रात,
उस्ताद कराम, अजीज़ तलबा और तालिबात और आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर फ़हद जावेद इकबाल साहब और प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज सोहावा सर तारिक महमूद तबस्सुम साहब, मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ अपने मेहमानाने गिरामी का कि उन्होंने अपने बेहद कीमती मसरूफियात और वक्त में से हमारे इस अदारे के लिए खसूसी वक्त निकाला और हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में एक बार फिर हम अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, जी आया ने। ख़वातीन हज़रात, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आज हम इस अदारे की 26वीं सालगिरह मना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से इस अदारे और तमाम असातिज़ा किराम की जानिब से आप तमाम वालिदैन और अहले इलाका को इस मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये आप तमाम वालिदैन और अहले इलाका का हम पर एतमाद और ताउन का मुँह बोलता सबूत है कि आज इस तालीमी अदारे को खिदमात फराम करते हुए 26 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1997 में इस अदारे की बुनियाद इस अज़्मो यकीन के साथ रखी गई कि आने वाली नस्लों को ऐसी जदीद तालीम और तरबियत दी जाए कि हमारे आज के बच्चे जो इस सरजमीन का मुस्तकबिल हैं वो आने वाले कल में वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस इलाके और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और ऐसी कौम बने जो तालीम के साथ साथ किरदार में भी अपनी मिसाल आप हो। ख़वातीन हज़रात, ये चौथाई सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इन 26 सालों में हमने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस इलाके में मियारी तालीम को आम करने के लिए दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इस गौरी हाई स्कूल ने इस मुल्क पाकिस्तान के हर अदारे को बेशुमार ऐसे हीरे फराम किए जो आज इस सरजमीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। ख़वातीन हज़रात, अब इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने साल भर की कारगुजारी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले पिछले साल की तरह प्री 9th का जिक्र करता चलूँ। जिस तरह हमने पिछले साल प्री 9th क्लासेस का आगाज़ कर दिया था, इस बार भी हमने दिसंबर में प्री 9th क्लासेस का आगाज़ कर दिया। हमारी जो मौजूदा 8th क्लास थी, हमने उसको प्री 9th में शिफ्ट किया एग्जामिनेशंस के बाद और इस बात को हम यकीनी बनाते हैं कि दिसंबर तक उनका 8th क्लास का तमाम निसाब, तमाम सिलेबस मुकम्मल किया जाए जिसकी बेस पर वो आगे प्री 9th स्टार्ट कर सकें। उसका फ़ायदा आज मार्च तक हमने ऑलमोस्ट 75 to 80% 9th क्लास का सिलेबस मुकम्मल कर लिया हुआ है। नॉर्मली बाकी स्कूल्स और गवर्नमेंट के अदारों में अप्रैल में सेशन स्टार्ट होगा और इंशाअल्लाह हमारे बच्चे अप्रैल मई तक अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। छुट्टियों में उनको रिवीजन का टाइम मिलेगा और इसके बाद पेपर्स आने तक वो बहुत अच्छी रिवीजन के साथ एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और इंशाअल्लाह उसका नतीजा बेहद अच्छा आएगा। ख़वातीन हज़रात, अपनी आज की इस तकरीर में कुछ बातें ऐसी भी करना चाहूँगा जो कि कई बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उनको दोहराना भी बहुत ज़रूरी है। एक इंतहाई अहम मसले पर बात करना चाहूँगा। हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पर एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, मेरिट पर सारे का सारा काम होता है और बच्चों को जितनी भी पोजीशंस मिलेंगी वो 100% ट्रूली मेरिट पर होंगी। ये बात मैं आप सबको चैलेंज के साथ कहता हूँ। मैं किसी भी अदारे का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर साल हम बहुत सारे एडमिशन्स करते हैं
और बाखुदा 80 to 90% मुझे इंतहाई दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है। उन वालिदैन के लिए भी मुझे दुख होता है, उन बच्चों के लिए भी दुख होता है कि 80 to 90% एडमिशन हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो बच्चे हाथ में सर्टिफिकेट लिए हुए होंगे, रिजल्ट कार्ड लिए हुए होंगे 100% मार्क्स का, 90+ मार्क्स का, उनकी पोजीशन फर्स्ट होगी अपने दायरे में, सेकंड होगी, लेकिन जब हम उनका यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, अगर मैं किसी 8th क्लास या 9th क्लास से बच्चे का एक जनरल टेस्ट ले लूँ जिसमें 4-5 क्लास के लेवल की बातें मैं उससे पूछूं, तो यकीन करें इतना दुख होता है कि उस बच्चे को वो चीज़ें भी नहीं आती। और उस बच्चे के हाथ में जब हम रिजल्ट कार्ड देख रहे होते हैं 100% 90% फर्स्ट पोजीशन का, तो तब उन वालिदैन पर अफसोस होता है कि जो वालिदैन स्कूल में एडमिशन कराते वक्त सिर्फ ये देखते हैं कि इस स्कूल ये हमारे घर से नज़दीक है, ये स्कूल, इसका ओनर या इसमें काम करने वाले लोग मेरे जानने वाले हैं, इसकी फीसिस कम हैं, इसके अखराजात कम हैं। इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जब एडमिशन्स कराए जाते हैं, और जो हकीकी चीज़ है कि आप क्वालिटी को देखें, आप मेयार को देखें, आप काम को देखें, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो फिर नतीजा ऐसे ही आता है। अब वो बच्ची जब मेरे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद फिर वालिदैन हमसे गिला करते हैं कि सर हमारा बच्चा पिछले स्कूल में 90+ मार्क्स ले रहा था, आपके पास फेल हो रहा है या उस पोजीशन से डाउन आ गया है, क्या वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर आपके साथ धोखा हो रहा था, उसमें कसूर आपका भी है और उस स्कूल का, उस इंतज़ामिया का, उस उस्ताद का तो है ही है, लेकिन आप उसको चेक कर सकते थे। आप बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। कई वालिदैन ऐसे भी आ जाते हैं कि हमें पूछना पड़ता है कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में, कहते हैं हमें पता ही नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशंस होंगी स्कूल्स के अंदर, वालिदैन स्कूल से राब्ता नहीं रखेंगे, लाताल्लुक रहेंगे, तो फिर रिजल्ट इस तरह का आएगा। और खुदा के लिए जब भी किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, आप किसी भी अदारे में एडमिशन कराएं, उसमें स्कूल में जाकर उस स्कूल का निज़ाम चेक करें, उस स्कूल का सिलेबस देखें, उस स्कूल की क्वालिटी देखें, उस स्कूल के उस्ताद की क्वालिफिकेशन देखें, उनका तजर्बा देखें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका एनवायरनमेंट और बेहद चीज़ें इकट्ठी होकर जब आप इन चीज़ों का मुआवजा करेंगे बाकी स्कूलों के साथ, फिर आप चेक करें कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेस्ट है और उसी स्कूल में एडमिशन कराएं। इंशाल्लाह वो वाली इन्वेस्टमेंट आपकी कभी भी रह नहीं जाएगी। इसके बाद इस साल के रिजल्ट्स के बारे में बताता चलूं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 8th क्लास तक जिनके हमने एग्ज़ाम्स लिए, 9th 10th इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, वो 235 स्टूडेंट्स थे। इनमें 90% प्लस स्टूडेंट वो 84 है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 84 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं, बहुत सारे 100% वाले भी हैं। अब आप शायद ये सोच रहे हों कि जिस तरह बाकी स्कूल्स 100% या 90% देते हैं, इस स्कूल में भी वैसे ही होगा। मैं ये बात आप सबको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हमारे स्कूल का बच्चा आप किसी भी दूसरे अदारे में ले जाएं, आप खुद घर पे टेस्ट करें, किसी से भी उसका टेस्ट दिलवा लें, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन, जो उसके मार्क्स, जो उसकी परसेंटेज इस स्कूल में आई होगी, इंशाल्लाह वो अपनी परसेंटेज हमेशा कायम रखेगा। और इसकी एक गवाही हमारे सर तारिक महमूद तबस्सुम साहब ज़रूर देंगे। इनके पास हमारी एक बहुत ही होनहार तालिबा एडमिशन हुआ, उसके बहुत सारी बच्चियों का, एक बच्ची उनमें अनम नूर भी है। यहाँ पर अगर वो बच्ची 90% ज़्यादा नंबर ले रही थी तो अपने कॉलेज में भी वो टॉप कर रही है, वहाँ पर भी वो अपने क्लास की सेक्शन हेड है। तो ये चीज़ है कि आपका बच्चा जब एक अदारे में जो पोजीशन ले रहा है, वही पोजीशन वो दूसरे अदारे में जाकर मेंटेन रखे, तो इसका मतलब है कि वो अदारा ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मेरिट पे काम कर रहा था, और ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद 80% से 90% के दरमियान 57 स्टूडेंट्स हैं, 70% से अबव
45 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 70% के दरमियान 23 स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स जो कि बिलो एवरेज हैं 40 से 50% के दरमियान, उनकी तादाद 16 है, और 40% से भी नीचे जिनको हम फेल तस्वर करते हैं वो भी 10 स्टूडेंट्स हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल बल्कि गवर्नमेंट के स्कूल्स भी बच्चे को फेल नहीं करते, लेकिन हम जो बच्चा जितने नंबर लेगा इंशाअल्लाह वही नंबर लिखे हुए होंगे और वो उसके अपने ज़ाती होंगे। किसी किस्म की एग्जामिनेशन में उसके साथ हेल्प नहीं की जाएगी और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ उसके अपनी मेहनत के होंगे। ये रिज़ल्ट है जो बच्चे की हकीकी कारकर्दगी में, ये बात दावत साहब कह सकता हूँ कि इस इदारे का बच्चा जिस भी स्कूल में जाएगा इंशाअल्लाह जो मैंने आपको चैलेंज किया है वो उस पर पूरा उतरेंगे। ख़वातीन व हज़रात, इस सारे प्रोग्राम के अंदर अगर मैं अपने स्टाफ, उस्ताज़ाए किराम और जितना भी हेल्पिंग स्टाफ है इन सब की मेहनतों और काविशों का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ खूब तालीम याफ्ता, खूब तजर्बेकार, खूब तरबियत याफ्ता, पुरअज़्म, मेहनती और इसार पेशा है। आज के तमाम प्रोग्राम जो पहले भी पेश किए गए और इसके बाद भी आपके सामने पेश किए जाएंगे, इनकी मेहनत, लगन, दिलचस्पी और महारत का मुंह बोलता सबूत है। ये अदारा आप सब के ताउन का मरहूने मिन्नत है। आपका ताउन हमेशा से ही बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। आज स्टेज पर पेश किए जाने वाले तमाम प्रोग्राम आपके ताउन और हौसला अफजाई के ख्वाहां हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आज की तकरीब शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत सारी बातें और भी थीं लेकिन आज मुख्तसर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे स्पेशल गेस्ट भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और इनको भी इंशाअल्लाह हम आपसे बातचीत करने का मौका देंगे। इस शेर के साथ अपनी बातों का इख्तिताम करना चाहूँगा। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी ना खिलते तो क़यामत होती। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लीज अटेंशन। सर की स्पीच के दौरान हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस आवर चीफ गेस्ट। ही इज़ वेरी नाइसली हम्बल एंड प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। ही इज़ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ Sohawa, full of affection, love and care for others. He is highly professional doctor of Sohawa and always shows a positive attitude towards his job and social services. आप सबकी भरपूर तालियों में मैं इस्तकबाल करना चाहूँगी डॉक्टर फहाद जावेद इकबाल साहब का और सर शाहिद का। थैंक यू सो मच सर।